Every journey is a story, and this one begins from Kishtwar. This land doesn't just hold soil, it holds a soul within. And today, we set out towards those towering mountains, a destination that's not just far away but close to the heart, Machel. As you leave Kishtwar behind, the hustle of the town fades away and the real story begins. These roads, these valleys, every turn paints a new picture. Look closely, these rivers flowing between mountains, as if nature is singing its own melody. Every gust of wind feels like an old friend greeting you. And these trees standing here for centuries, just watching, just listening. As we move ahead, the paths become narrow, a deep gorge below, only sky above. Your heart beats faster, yet your eyes, they get lost in the beauty. This is not just a road trip, this is a test of courage. Along the way, small villages appear. Faces of people carrying that rare smile, the kind only mountain folks have. And here, there's no rush, no noise, only peace. Life moves slowly here, but hearts beat faster. As we climb higher, the air changes. Cold breezes brush against your face, whispering, "Welcome to the heights." The sky feels so close, as if you could reach out and touch it. And below, the world looks so small. Hello everyone, as we are now on the top of the Machel village. Here you can see the entrance. There is a bridge where people came from there, and here is the way to the Machel village. As you can see here, the Machel Mata temple, where thousands and lakhs of people came every year to show their devotion to the Lord Machel Mata. Here you can also see the farmland where people grow various types of crops like maize, wheat, rice. The interaction with people is very good here. I suggest you must come here and visit the village. And then, Machel, the moment you arrive, it feels as if time has stopped. This isn't just a destination, it's a feeling. Calm, pure, and truly yours. Machel isn't just a name, it's a story. Every journey becomes a memory, but this is a saga. From every turn, every valley, every breath between Kishtwar and Machel.
हेलो, तो आज हम आ चुके हैं हांगू विलेज में। आज हम जरूरत नरबू जी के साथ हैं। वो आपको यहाँ की हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज के बारे में बताएंगे। तो सर, आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करें। मेरा नाम जगमत नरबू है। मैं यहाँ का सरपंच हूँ। तो आगे भाजपा सर जिसके साथ पार्टी के साथ ही लगा हूँ जी। तो आप यहाँ मतलब बचपन से? मैं बचपन से यहाँ पर है। आपकी जन्मभूमि की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ वो मेरा जन्म हो 1960 मेरा जगह पर। तो आप थोड़ा अपने विलेज के बारे में थोड़ा बताएं, कोई हिस्ट्री अपने विलेज। हिस्ट्री तो इतना तो मुझे भी पता नहीं है, मगर हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि पिछले 5, 6, 7 पीढ़ी पहले मैंने देखा यहाँ का जो हमारे नकल है, जमावती नकल है, उस हिसाब में वहाँ पे गंगाराम, मोतराम, मोतीराम सब कुछ आ रहा है। उसके बाद मेरे पिताजी का नाम भी संतराम। उसके बाद आज के डेट में जब हम पढ़ने लगे, पहले तो पढ़ाई होती नहीं थी, लोग अनपढ़ थे, मास्टर वगैरह शिक्षक चाहते थे, वो अपने हिसाब से नाम रखते थे। तो इसके साथ साथ आज के डेट में आप अपने हम बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हिसाब से अपने नाम रखते हैं। उससे पहले भी हम खुद लिखते हैं, इनको पहले जैसे सिरिंग हम लिखते हैं। तो जैसे आपके लोग आए या राजपूत है, कोई ममरन आए, वो उसको सिरिंग पढ़ते नहीं, तेसरिंग। जैसे हमारा टी जो है साइलेंट हो जाता है, उसको हम सिरिंग पढ़ते हैं, TSCR। तो हम लोग, मुझे लग रहा है आज से 5-7 पीढ़ी पहले लाहौल स्पीति से, मुझे जो मेरा आइडिया, अपना पर्सनल आइडिया है, मुझे लग रहा है कि हम लोग लाहौल स्पीति से, क्योंकि लाहौल स्पीति में हिंदू और बुद्धिस्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है। वो हिंदू, राजपूत और जो बुद्धिस्ट है आपस में शादी करते हैं। यहाँ बहुत कम होता है, यहाँ पे ये कहा तो होता, मगर इतना नहीं होता। तो बाकी आज तक तो यहाँ आज से कोई 10-12 साल पहले, जैसे कि 2014 से पहले यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आती थी, वोट मांगते थे, लोग दे देते थे लोगों को अपने वोट का, मतदान का पता ही नहीं होता। वोट क्या चीज़ है, हमने क्या चुनना है। कहीं गाँव का एक बुजुर्ग आया, बोल दिया कि इस फलाने आदमी को देना, हम खुशी खुशी से दे देते। ये मुझे खुद याद, खुशी खुशी से दे देते। 2014 के बाद हमको भी पता चला कि हमारे वोट का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेवलपमेंट क्या है। तो मुझे लग रहा है 2014 के बाद आज की हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। आज के डेट में यहाँ रोड भी पहुँची हुई है, बिजली है, नेटवर्क है, हर चीज़ है। जब से मोदी सरकार आई है तब से हमें लग रहा है कि हमारा भी कोई आगे सुनवाई है। आप कहना चाहते हैं कि 14 के बाद भी जो भी डेवलपमेंट हुई है 2014 के बाद, 14 से पहले कुछ नहीं। तो आपके गांव की जो पॉपुलेशन है अभी इस टाइम पे, ये कितनी होगी? ये लगभग मुझे लगता है इसी गांव का अगर मैं पॉपुलेशन गिनूँ तो 300 के ऊपर है, मगर आज के डेट में यहाँ 40-50 लोग से ज़्यादा नहीं रहते। माइग्रेंट, हाँ माइग्रेंट हो गए यहाँ से। जो भी मुलाजम है या जो अपने कारोबार में ठीक है, वो यहाँ से माइग्रेंट हो गए। फैसिलिटीज अभी भी ठीक नहीं है, एजुकेशन है, हेल्थ सिस्टम है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब जैसे अगर कोई बीमार हो गया तो आपको इतना ट्रैवल करके नीचे जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता, बहुत मुश्किल। अभी तो जब से भाजपा की सरकार आई है तब से हेलीकॉप्टर भी मिल जाता कभी कभी हमें इमरजेंसी पे। तो आज के डेट में हम लोग भी नहीं रहते, सर्दियों में पूरे के पूरा गाँव खाली होता है, सब शिफ्ट हो जाते जम्मू, क्योंकि हमारी एक मजबूरी, फैसिलिटीज नहीं, हेल्थ इशू में। बाकी तो चल जाता है, खाने पीने का हम 6 महीने का, जैसे कि हम 6 महीने का कोटा रिजर्व करते थे,
चाहे इंसान के लिए दाल चावल जो भी खुराक है, या गाय मवेशी जो भी रखते हैं, घास वास जो भी है, तो 6 महीने 7 महीने का कोटा हम पहले एडवांस में अक्टूबर नवंबर में रिजर्व कर देते हैं। तो फिर भी थोड़ा सेहत को लेके थोड़ा दिक्कत हो जाता, मुश्किल हो जाता, इसलिए लोगों के पास लोग काम करने लगे, लोग घूमने लगे आगे पीछे, तो अपने बिजनेस शुरू किया, लोगों के पास पैसा लगा गया, तभी तो फिर गया। ऐसा नहीं है कि खास करके मैं अपने कम्युनिटी की बात करूँ तो हमारे कम्युनिटी में जैसे 2 बच्चे 3 बच्चे जिसकी भी है ग्रेजुएट, PhD, MSc, मतलब 10वीं 12वीं पास बहुत कम मिलेगा। एजुकेशन का लेवल, एजुकेशन का बहुत हाई लेवल है, मतलब पहले से नहीं, पहले से आज के डेट में भी जहाँ तक मैं समझूं कि अभी भी ये मिचेल हमोरी चुशोती जैसे मेरे पंचायत में ही आता है, ये लोग बहुत कम पढ़ते हैं, इनको अभी पढ़ाई का उतना वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं, गवर्नमेंट स्कूल है लेकिन गवर्नमेंट स्कूल है ना के बराबर, ना के बराबर, मतलब बहुत चलना पड़ता होगा। जैसे कि मेरे अपने बच्चे थे 3 साल 4 साल के हो गए, हमने यहाँ से माइग्रेट हो, मतलब ये एक प्रॉब्लम, ये मजबूरी है, खास करके एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम, ये 2 प्रॉब्लम, ये 2 मेन इशू है। ऐसे जो आपके गाँव में जो जैसे क्रॉप्स वगैरह होती हैं, तो ये कौन सी बात होती है? ये यहाँ पर ज़्यादातर राजमा, आलू, तो जौ, ये हमारा एक यहाँ का स्पेशली वो होता है गिरम करके, जिसको कि नंगा जाओ भी बोलते हैं, गिरम करके वो ज़्यादा हम सत्तू यूज़ करते हैं, उसके लिए होता है। इसकी तो डिमांड भी हाँ, डिमांड भी है उसकी, बहुत बड़ी डिमांड। यहाँ की जो एक दूसरा राव बोलते हैं, शायद आपको पता नहीं है, वो फुलन टाइप में है, थोड़ा कड़वा जैसा होता, फुलन थोड़ा मीठा होता। ये 4-5 चीज़ें यहाँ का अच्छा मतलब। तो जैसे जब यात्रा आती है, मुझे यात्रा आती है, तो उस टाइम पे यहाँ के लोगों को फायदा होता है? हाँ, बहुत फायदा होता है। स्टॉल लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, छोटे मोटे होटल जो भी है, हर आदमी अपने रात पे कोई टेंट लगाता है, कोई दुकानदारी का काम करता है, कोई होटल का काम करता है, कोई स्टॉल का काम करता है, मतलब काफ़ी फायदा होता है। तो पिछले साल तो आपके हिसाब से कितने यात्रा आए होंगे? मेरे हिसाब से मेरे नॉलेज में है 3 लाख अबोव, मतलब काफ़ी फायदा होगा। काफ़ी फायदा होता है, इससे लोगों की थोड़ी बहुत रोजी रोटी भी चल जाती है। उस हिसाब से तो गवर्नमेंट भी फिर यहाँ पे डेवलपमेंट रहेगी आसपास में। हाँ, नहीं वो तो हो रहा है, अब हो रहा है, हम ये नहीं कहें कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, बट थोड़ा तो समय तो जैसे ये रोड वगैरह यहाँ पे पहुँच जाएगी तो तब तो आपको भी आसानी होगी, मतलब यहाँ से मतलब हाँ बिल्कुल तो फैसिलिटीज यहाँ पे पहुँच जाएंगी। जी। ऐसे यहाँ पे जय माता के मंदिर के अलावा टूरिज्म का और क्या मतलब स्कोप है यहाँ? मिचेल सबसे मैं पहले बताऊँ, मिचेल माता तो है ही है यहाँ पे, हम लोग बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग भी वहाँ अपना हम मानते हैं माता रानी को। उसके अलावा हमारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, यहाँ बुद्धि में मोनेस्ट्री है, दूसरी में 2 मोनेस्ट्री है, और इसके साथ साथ ये पतनाज वैली है, बहुत खूबसूरत है, बुजोनो वैली है, बहुत खूबसूरत है, बुजोनो वैली, पतनाज वैली, दारलाम वैली, इन जगहों में बकरवाल और ये गद्दी जाते हैं। धरलंग नाला जो है 72 मील्स बोलते हैं, यानी कि पुराने हिसाब से मैं कहता हूँ 100 किलोमीटर दूर लंबा है, 60-70 ये बकरवाल जाते हैं। फिर सुमचान है, नीलम खान है, बहुत देखने वाली चीज़ है, टूरिज्म का बहुत अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत, लोगों को देखने के लिए जगह है, लोग यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खास करके गर्मियों में। सर्दियों में बर्फ होती है बहुत अच्छी, लोग तो दिल्ली मुंबई से आके श्रीनगर जाते हैं, ये श्रीनगर से भी ज़्यादा खूबसूरत है, थोड़ी सा यहाँ डेवलपमेंट नहीं। वैसे यहाँ पे कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं आपके गाँव में? फेस्टिवल हमारे एक सबसे बड़ा हमारा एक त्यौहार होता है लोसर का।
लो सर मीन्स हो गया लो, लो हो गया साल, सर हो गया नया नया साल। जैसे आप लोहड़ी मनाते हैं, लो सर हो गया। सबसे मशहूर त्यौहार हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी में। मतलब अलग अलग जगह से एक जगह पैदा होते हैं, मतलब जैसे आपका गाँव हो, एक जगह पे हाँ नहीं, अपने अपने गाँव में मनाते हैं। हाँ, अपने अपने गाँव में, क्योंकि दिक्कत है ना यहाँ पे, एक दूसरे गांव में हम नहीं जा सकते बर्फबारी की वजह से। ये जनवरी के महीने में होता है, तब बर्फ पड़ जाती है। बर्फ भी काफी पड़ती होगी, काफी यहाँ कम से कम 8-10 फुट बर्फ पड़ती है, ज़्यादा पड़ते हैं। अगर जिस साल बर्फ ज़्यादा पड़ा 8-10 फुट पड़ती है, नहीं तो फिर कभी 4 फुट कभी 5 फुट। प्रॉब्लम होती होगी, बहुत प्रॉब्लम तो बहुत, खाना खाना रिजर्व खाना। फिर जाते हैं गांव में, जाते क्यों नहीं, हमोली वाले जैसे हांगो वाले हलोती जाते हैं, हलोती वाले मिचेल जाते हैं। सिस्टम तो चलता रहता है, ये कि नहीं कि लोग अपने गांव में या घरों में बंद रहते हैं, सिस्टम चलता रहता है। 1-2 दिन बारिश हो या बर्फबारी जब होती है तब नहीं चलते, उसके बाद फिर लोगों का आना जाना 2-4 दिन के बाद शुरू हो जाता है। और कोई त्यौहार हमारा बहुत था, अब तो लोग यहाँ से माइग्रेट हो गए, मनाते हैं। ये लोसर जो है हम जम्मू में भी मनाते हैं, जैसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो बैसाखी मनाते हैं यहाँ पे हम, आज है ही नहीं तो कौन मनाएगा, गाँव खाली हो गए, मतलब लोग बाहर। हाँ बिल्कुल, बैसाखी मनाते हैं। ये धरसे करके बहुत बड़ा मशहूर होता है, जिसमें तीर कमान होता है हमारे, उसका एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो आपके हिसाब से यहाँ पे फ्यूचर स्कोप जो है, फ्यूचर स्कोप किस हिसाब से आप देखते हैं, मतलब आपके नजरिए में थोड़ा बता सकते हैं? फ्यूचर मतलब भविष्य में आप अपने गांव को किस हिसाब से देखते हैं? भविष्य में तो आप सभी जानते हैं कि मिचेल माता यहाँ है, ये सखान जो है यहाँ लाखों लोग आए। मुझे लग रहा है CID वाले रिपोर्ट के हिसाब से, पुलिस वालों के साथ भी अभी हाल ही में IG साहब, DIG साहब, SSP साहब आए, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई। तो मुझे लग रहा है 6-7 लाख यात्री इस साल। और आने वाला फ्यूचर ये है कि यहाँ डेवलप हो। 10-15 साल के बाद हम रहे ना रहे, हम तो बुजुर्ग हो गए, मगर देखो आप 10-15 साल के बाद यहाँ पर बहुत लोगों को ये इस जगह के लिए तरसना पड़ेगा। आज के डेट में भी हमको दिल्ली से, मुंबई से, जम्मू से अपने यार दोस्त जो है वो कहते हैं कि हमको यहाँ 5 मरला दे दो, 10 मरला दे दो, कोई बोलते हैं ये कनाल दे दो, 10 कनाल दे दो, मगर है ही नहीं लोगों के पास गुंजाइश। उनकी पहाड़ी एरिया है, जमीन छोटी छोटी ज़मीनें हैं, तो 5-7 पीढ़ियों से उनकी हैसियत होते गए अब हमारे पास वो है स्टेट लेवल में होते हैं। काफी बहुत ब्राइट। तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि मतलब यहाँ तक पहुँचने के थोड़ा रूट का बता सकते हैं, कहाँ से मतलब आना है, कहाँ से आसानी में आना आपकी विलेज जम्मू से? जम्मू से। हाँ, जम्मू से आप किश्तवाड़ आ सकते हो, किश्तवाड़ से पाडर आ सकते हो, तो पाडर से आपको गुलाबगढ़ जैसे पहुँचेंगे तो फिर तो मिचेल माता सबको पता है। हाँ बिल्कुल डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर अगले साल या मुझे तो लगता है अगले साल यहाँ रोड पहुँच जाएगी तो फिर ये 1.5 घंटा ही लगेगा। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के एक्स सरपंच, तो इन्होंने आपको बताया यहाँ की कल्चरल हिस्ट्री, हेरिटेज और गाँव वालों का रहन सहन कैसा होता है।
तो अभी हमारे साथ हैं श्री देसराज जी, जो कि हेडमास्टर रिटायर हैं। तो वो हमको यहाँ के विलेज के बारे में बताएंगे। तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को। मेरा नाम देसराज है। मैं हलोती गाँव का रहने वाला हूँ। तो इस वक्त मैं हलोती गुम्पा में हूँ। पुजारी जी कहीं, लामा जी कहीं गए हुए हैं, बहुत ज़रूरी इशू को लेके जम्मू गए हुए हैं। तो गांव वाले बारी बारी यहाँ हाजिरी दे रहे हैं। तो इस वक्त मैं गुम्पा में हूँ। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ गुम्पा में, हलोती गुम्पा में। इस गुम्पा को लगभग 120-30 साल, लगभग 150 साल ये पुराना गुम्पा है। तो आप लोगों का स्वागत है इस गुम्पा में जी। तो वैसे जो गांव है यहाँ पे आबादी कितनी है? इस गांव की आबादी अगर राशन कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 70 घर है। तो मगर रोड कनेक्टिविटी वगैरह ना होने की वजह से और क्या कहते हैं, अब हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से लोग पहले काफ़ी माइग्रेट कर गए हैं, यहाँ से माइग्रेशन हो गई है। कुछ गुलाबगढ़ में रह रहे हैं, कुछ किश्तवाड़ में रह रहे हैं, कुछ जम्मू में रह रहे हैं। फिर भी यहाँ 20-25 घर हैं जो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। सर्दियों में भी कुछ लोग रहते हैं, गर्मियों में 20-25 घर चूल्हे यहाँ रहते हैं। मैक्सिमम लोग बिजनेस और पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में नीचे रहते हैं। मतलब यहाँ पे उतनी फैसिलिटी नहीं, इसलिए वो जी जी जाते हैं। तो यही जो है पढ़ाई को लेकर, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनको लेकर, कुछ बिजनेस करने, कोई उनको नौकरी है, तो वो जो मजबूरन इस गांव को छोड़ के जाना पड़ा। वैसे वो आते रहते हैं गांव में। तो कई लोग जो है गर्मी में आ जाते हैं, सर्दी में फिर कुछ लोग चले जाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि 150 साल पहले इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है जी, गुम्पा की। हाँ, तो आप बता सकते हैं मतलब किसने किया, अगर आपके नॉलेज में? ये उन दिनों कोई सिर्फ 4-5 घर थे जी। 4-5 घर थे। उन्होंने एस्टेब्लिश किया अपना डोनेशन से। कई उन्हें, जैसे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने, हमने सुना, चांदी के 200 सिक्के दिए। तो उसी तरह कई बुजुर्ग जो है अपना कुछ गाय दान किया, कई उन्हें अपना बैल दान किया, कई उन्हें बेड़ू वगैरह दान करके वो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठे करके मूर्ति वगैरह बनवाई। तो उसके बाद जो है ये जो अभी ढांचा आपको मंदिर नज़र आ रहा, तो अपने ही पीठ पे जंगल में जाके लकड़ी लाई, उन्होंने पत्थर जमा किए, पत्थर जमा करके फिर खुद पहले जो है ये पुराना मॉडल है, खुद वो मिस्त्री का काम भी कर लेते थे, चुनाई का काम भी करते थे। तो ये हमारे बुजुर्गों की देन है, उन्होंने खुद ये कायम किया, एस्टेब्लिश किया। और पेंटिंग वगैरह के लिए फिर लेह लद्दाख वगैरह से जो पेंटर्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल पेंटिंग में जो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने ये पेंट किया। मतलब ये जो 150 साल से जैसा ये बना हुआ था वैसा, इसकी कोई रिनोवेशन? हाँ, एक बार पहले कुछ मॉडल और कुछ था। आज से लगभग कोई 30 साल पहले, 30-35-40 हो गए, लगभग 40 साल पहले फिर इसको दोबारा नए सिरे से बनवाया उन्होंने। और जो ये शीट नज़र आ रहे हैं, ये शीट ऊपर जो है टीन का शीट, उन दिनों गल्हार से पीठ पे उठा के लोगों ने 3-3, मतलब हर घर को 3-3 शीट लाने के लिए कहा गया। तो गल्हार से उठा के यहाँ तक पहुँचाया। मैं उन दिनों 8वीं में पढ़ता था, मैंने अभी 2 शीट उठाए गल्हार से। हम 2 भाई गए, तो गल्हार से करथाई तक मेरे बड़े भाई ने उठाया, करथाई से यहाँ तक मैंने 2 शीट पहुँचाए। तो उस तरीके से बड़ी मुश्किल से लोगों ने इस गुम्पा को तमीर किया। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं इसी को मेंटेन रखने का, जो विरासत हमें मिला अपने पूर्वजों की। तो आप थोड़ा बता सकते हैं हमको के बारे में? हाँ, ये भगवान बुद्ध का मंदिर है। जैसे आप बीच में जो बड़ी मूर्ति है, ये भगवान बुद्ध है। तो भगवान बुद्ध के लेफ्ट साइड में गुरु पद्म संभावा, इनको लोटस बारन भी कहते हैं। ये जो है इनका जन्म ना किसी ने देखा, ना इनकी मृत्यु देखी है, ना इनके पेरेंट्स को देखा है। तो आज भी हम कहते हैं ये किसी न किसी रूप में जीवित हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ये जब नालंदा वजूद में था, नालंदा का एक तांत्रिक विद्या का मास्टर थे, गुरु थे। उन दिनों जो है नालंदा में, आपको पता है, जब भारत विश्व गुरु था, तो ऐसे टीचर्स होते थे जो वो पढ़ाते थे,
उस बात का न केवल नॉलेज बल्कि उनको एक्सपीरियंस भी होता था। अगर धर्म की बात वो करते थे तो पूरा वो धार्मिक होते थे खुद। तो अगर तांत्रिक विद्या देते थे तो वो पूरी तरह से उस तांत्रिक को जानते थे। तो तांत्रिक विद्या का गुरु जो है गुरु पद्मासंभव जी थे, अभी भी हैं, थे नहीं कह सकते हैं, अभी भी ये जीवित हैं। हम कहते हैं ये असुर लोक में उनको असुरों को क्या कहते हैं ज्ञान देने गए हुए हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध की मूर्ति है। तो पीछे जो बहुत सारी बुझाएं वाला आपको नजर आ रहा, इनको बोलते हैं आर्य अवलोकी तुष्वारा, आर्य अवलोकी तेश्वरा। इनको धर्मराज भी कहते हैं। हमारे बुद्धिज्म में ये कॉन्सेप्ट है कि मरने के बाद जो हिसाब किताब होता है तो इन्हीं के सामने होता है। यही फैसला करते हैं कि कौन किस लोक में जाएगा, किस योनि में जाएगा। तो कई योनियां हैं, उनमें वो मतलब उस अपने धर्म कर्मों के अनुसार आदमी को जाना होता है। उसके साथ फिर गुरु पद्मासंभव के साथ में एक लाल मूर्ति है, जिनका चेहरा जो लाल है, उनको कहते हैं गुरु अमिताभा, बुद्धा अमिताभा है। तो फिर उस तरह एक मूर्ति है, वो तारा देवी जी है। तारा देवी जो हिंदू धर्म में भी मानते हैं तारा देवी को, तो तारा देवी जी की मूर्ति है। और ये जो लाइब्रेरी आपको नजर आ रही है यहाँ, बुक्स जो है, ये जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो पोथियाँ हैं, ये इनको बोलते हैं युम, बुम भी कहते हैं, युम भी कहते हैं। युम मन मीन्स मदर, युम मन मदर। ये जो है भगवान बुद्ध की टीचिंग्स हैं। ये जो हैंडमेड है, पेपर्स जो है हैंडमेड है। पहले जो है पेपर नहीं होता था, कारखाने से नहीं निकलता था, लोग अपने तरीके से पेपर को बनाते थे। जो जड़ी बूटियों को लाके उनको कूट के किसी तरीके से वो पेपर बनाते थे और पेपर पर खुद लिखते थे। तो वो जो ये 16 पोथियां हैं, इनको बोलते हैं युम भी कहते हैं, बुम भी कहते हैं। बुम युम हो गया मदर, बुम हो गया। इनमें श्लोका 1,00,000 श्लोका है, इसलिए बुम कहते हैं। बुम हो गया लाख। हाँ। फिर उस तरह जो 108 पोथियां हैं, इनको बोलते हैं त्रिपिटिका। भगवान बुद्ध ने जो टीचिंग्स दिए संसार को, तो वो सारे इनमें है। तो इनका नक्शल जो है बुम में है, अभी युम मैंने कहा। तो वो जो त्रिपिटका का जब नालंदा राइज में इसमें वजूद में आया, तो नालंदा के गुरु ने, जैसे गुरु नागार्जुना, चंद्रकीर्ति, धर्मकीर्ति, ये बहुत सारे, मतलब ये अभी मैंने कहा कि गुरु तांत्रिक विद्या का गुरु, इन्होंने फिर एलोबरेट करके फिर 208 पोथियों में इनको सरल भाषा में, मतलब लोगों को समझाने के लिए ये किताबें उन्होंने निकाली। मतलब उनको विस्तार से लोगों को समझाने के लिए ये त्रिपिटका का ही इसको बोलते हैं। उनको कंजूर बोलते हैं, इनको तंजूर बोलते हैं। ये 208 लगभग पोथियां हैं, वो 108 पोथियां हैं। तो ये जो बाद में आप ये जो मूर्तियां नजर आ रही हैं, ये जो कई किस्म के, इनमें जो हमारा इष्ट देव वगैरह, इष्ट देव जो होता वो भी हैं। तो जो रक्षक जो होता है हमारा, मतलब जो जहाँ भी, जिस मंदिर में भी जाओ या जहाँ भी जाओ, तो कोई ना कोई रक्षक होता है। तो उनकी मूर्तियाँ हैं ये सारी, ये पीछे जो नजर आते हैं जी हमारे रक्षक हैं जी। तो ये जो आपने अभी जो कोचिंग के बारे में हमको बताया, ये भी उसी टाइम पे यहाँ पे लाई गई थी जब एस्टेब्लिशमेंट? हाँ जी, ये जो हैंडमेड जो है, हैंडमेड उसी टाइम पे लाई गई थी ये किताबें, जो हैंडमेड मैन्युस्क्रिप्ट है। तो बाकी जो ये 108 पोथियाँ जो त्रिपिटिका जिनको बोलते हैं, तो ये जो है लगभग 35-40 साल पहले लोगों ने, पता नहीं कहीं से, मुझे कंप्लीट नॉलेज नहीं है, नेपाल से लाए कि पता नहीं कहाँ से लाए, ये किताबें यहाँ पहुँची थी। तब हम 6ठी-7वीं में पढ़ते थे। अभी मैं रिटायर होकर मुझे 1 साल हो गया, 61 का हो गया। तब मैं 14, 15, 16 साल का था। उन दिनों ये किताबें यहाँ पहुँची थी, वो वाली। ये तो रिसेंटली कोई 2-4 साल, 10-5 साल हो गए। जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है, ये भी उसी टाइम बनी हुई है? भगवान बुद्ध की ये जो सामने वाली जो अभी कॉपर की मूर्ति है, ये इनको तो कुछ साल ही हो गए, 5-6 साल हो गए। दिल्ली में बनवाया और दिल्ली से यहाँ हमने लाया।
जी। उस टाइम पे ये जो बगल में जो ये छोटी मूर्ति हाँ, पहले ये छोटी मूर्तियाँ पहले से ही कई साल हो गए, जी ये बड़ी मूर्ति से पहले ये थी, ये बड़ी मूर्ति बाद में आ रही। फिर बीच में ये जो बीच में अभी जो नज़र आ रहा है आपको, ये मंदिर टाइप का, मंदिर के आकार का, इसको बोलते हैं स्तूपा। जी स्तूपा होता जैसे कोई बड़ा गुरु परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद उनकी जो अस्थियां समझो वो होती हैं, उनको बांट देते हैं, तो उनके कई मंदिर बनाए जाते हैं। मंदिर में अब अगर मंदिर नहीं बनाते तो आप स्तूपा की शक्ल में उसमें डाल के स्तूपा जो है एस्टेब्लिश करते हैं, और हर जगह जो है पूजा पाठ के लिए ये ले जाते हैं। जी जी, इनको कहते हैं स्तूपा। जैसे सरल भाषा में हम कहेंगे क्या कहते हैं, ये अस्थियां जो होती है ना, हाँ जी, वो होती हैं, वो चीज़ें। मतलब वो उसके अंदर होती है। जी जी जी। अच्छा, सभी एनर्जी का सोर्स है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। और ये जो ये शंख रखा हुआ है ये बड़ा सा, हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताएं। शंख का तो मुझे मालूम नहीं, जब ये बना है तब से ये अच्छा, ये भी जी जी, ancient पुराना है, ancient है। ऐसे तो आपके जो गांव है इसकी आबादी आपने जैसे बोला कि 70 घर हैं। 70 घर है। तो आप इसको टूरिज्म का स्कोप क्या देखते हैं यहाँ पे? टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने कोई आज तक कोई मतलब स्टेप ऐसा उठाया ही नहीं है जिससे लाइमलाइट में आ जाए या एक्सप्लोर हो जाए। मैं कई जगह घूमा हूँ, मैं उत्तराखंड भी गया हूँ, हिमाचल भी गया हूँ, कश्मीर में घूमा हूँ, नेपाल साइड, इधर क्या कहते हैं अरुणाचल, ये बहुत सारी जगह हिल स्टेशन में मैं गया हूँ। लेकिन यहाँ की सिंधी जो यूनिक है, अभी आप यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ से अगर 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ोगे तो बिल्कुल प्लेटो नजर आएगा, बिल्कुल ग्रीन मीडोज, वाटरफॉल्स, और क्या कहते हैं जी किस्म किस्म के फूल, जड़ी बूटियाँ। लेकिन वहाँ तक लोगों का कोई एक्सेस है ही नहीं, लोगों को बताया नहीं गया कि वहाँ है, ना कोई फैसिलिटीज़ दी गई है। जैसे मैं कहूँगा अभी मिचेल में ही आप ले लीजिए, मिचेल तो एक प्रसिद्ध जगह है, पूरे ऑल इंडिया से लोग आते हैं, इंडिया के हर कोने से। आप वहाँ बताए अगर हमारे देश का कोई बड़ा मंत्री कहेगा मैं नाइट स्टे करूँगा, तो उनको नाइट स्टे करने के लिए जगह, उनके लायक की जगह नहीं मिलेगी। कोई ऐसा क्वार्टर जो सिक्योर हो, मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स जहाँ बैठ सके, या मतलब उनके बॉडी गार्ड्स 40-50 उनके इर्द गिर्द बैठ सके, कोई लेटरिन बाथरूम अटैच उस लेवल का वर्ल्ड क्लास का ऐसा कोई है ही नहीं है। यहाँ की तो बात ही नहीं है। आपको अभी गेस्ट हाउस, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस आप ढूंढोगे तो वहाँ मिचेल में भी नहीं है। तो सिर्फ संस्था ने जो है माता का जो पैसा आता है उससे छोटे छोटे कुछ कमरे बना लिए हैं, तो अटैच लेटरिन बाथरूम है कि नहीं वो भी मुझे मालूम नहीं है। टूरिज्म को लेके यहाँ बिल्कुल जीरो है। टूरिज्म अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने थोड़ा बहुत अगर स्टेप उठाए, तो जैसे यहाँ मिचेल बाउंड के ऊपर बिल्कुल एक प्लेटो है, वहाँ से पूरा आपको 3 तहसील के जो टॉप नजर आएगा, पूरा तहसील पाटर नजर आएगा, वो नागसैनी तक, नागसैनी का टॉप, इधर से दरलंग करगिल साइड का वो जो पीक्स हैं, इधर से आपको दक्षिण मड़वा साइड का पीक्स नजर आएंगे। 3-4 नाले आपके सामने बिल्कुल आपको नजर आएगा। तो लेकिन वहाँ अगर केबल कार लगाया जाए तो जैसे मिचेल में लाखों लोग आते हैं, 3-4 लास्ट ईयर 3 लाख लोग आए थे। एक्सपेक्टेड है कि इस साल 5-6 लाख आए। लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ मिचेल भवन की दर्शन करने के अलावा टूरिस्ट को हमने डाइवर्ट करने की कोशिश की ही नहीं। आप देखिए कश्मीर में जाए, बड़े बड़े ऐड होते हैं, गुलमर्ग में ये है, पहलगाम में ये है, सोनमर्ग में ये है, फलाने जगह वटलब में ये है, मुगल गार्डन में ये है, शालीमार गार्डन में है, फलाना है। तो मिचेल में जाके आपको एक कहीं बोर्ड भी नजर नहीं आएगा कि आप जाए हलोती में जाए, वहाँ गुम्पा है, हलोती के पीछे प्लेटो है, बुजोनू है, फिर बरनाज में लेक्स हैं, वहाँ ग्रीन मीडोज हैं, वहाँ एक ये पूरा जो दरिया जो है एक पहाड़ के बीच से निकलता है, कहीं ग्लेशियर के पता नहीं कहाँ है, मगर बीच पहाड़ से निकलता है। इन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया, और टूरिस्ट आते हैं, हमारे लोकल लोग जो है कोई फायदा नहीं उठा पाते। टूरिस्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल जो करोड़पति लोग आते हैं, वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, बाउंड में जाते हैं, बिस्लरी वाटर जो बोतल लेके आते हैं, उसी को लेके फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ उनको उनके एंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह नहीं बनाई है।
अगर केबल कार बना दिया जाए तो आज के नौजवान जो है, बूढ़े बुजुर्ग सब जाएंगे उधर पीक से देख के। जैसे रोहतांग पास है उधर मनाली में, क्या है, एक पीक है, वहां से सारा पीक्स बहुत सारे पीक्स नजर आते हैं। उसी तरह यहाँ से अगर बनाया जाए 40-50-100 करोड़ लगा के, तो पूरा बॉर्डर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। 100-200-300 लोग बच्चों को नौकरी मिलेगी। नौकरी क्या मतलब, उनका बिजनेस खुलेगा। और जो है, जो टूरिस्ट है वो यहाँ रहेंगे, 5-6 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, तब इलाके की डेवलपमेंट होगी। वरना जैसे हमने सिस्टम अभी तक चलाया, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, दर्शन किया, दर्शन करके फिर हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, वापस चले जाते हैं। गरीबों को, इलाके को कोई फायदा अभी हम उठा नहीं पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं उठाया। ये रोड जो बन रही है, आपको लगता है इससे थोड़ा यहाँ पे फर्क पड़ेगा? हाँ, रोड के बनने से, ये रोड एक बहुत मतलब पॉजिटिव थिंग है हमारे लिए। रोड जब आएगा तो टूरिस्ट, मुझे लगता है, फिर ज्यादा यहाँ बैठेंगे। क्योंकि जब पैदल 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलना होता तो सिटी के लोग थक जाते हैं, थक के फिर वापस जल्दी जल्दी लौटने की कोशिश करते हैं। तो अगर रोड बन गया यहाँ तक तो फिर वो जरूर वो फ्रेश होते हैं। फिर थोड़ा किलोमीटर 2-4-5 किलोमीटर इधर उधर चल के सीनरीज को देखने के लिए वो जरूर जाएंगे। वरना जो है, वो अभी रोड ना होने की वजह से उनको फैसिलिटीज, टूरिस्ट को फैसिलिटीज भी नहीं है। सब्जी जो है अच्छी नहीं मिलती है। तो जो मकान बना रहे हैं उनको भी बहुत महंगा पड़ रहा है। एक सीमेंट की गुत्थी अगर मैं अपने गांव में पहुंचाता हूं तो जितनी सीमेंट की गुत्थी की कीमत है उतना हमें कैरेज लग जाता है। तो इन चीजों से जो है बना नहीं पा रहे, उतना वेल टू डू तो है ही नहीं, वेल ऑफ तो है ही नहीं कि हम करोड़ों पैसा लगाएंगे मकान बना लेंगे। बड़ी हैंड टू माउथ है सारे लगभग यहाँ के लोग। तो थोड़ा बहुत जो बनाते हैं, 2-4 कमरे बनाते हैं, वो बहुत महंगा पड़ता है। और टूरिज्म को कुछ मतलब हम फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं, वो हम खुद मानते हैं। इसका कारण यही है कि रोड अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। तो हम वैसे बड़ा शुक्रगुजार हैं अपना विधायक सुनील शर्मा जी का। उन्होंने बड़ी कोशिश की और जो है यहाँ तक चिशोती होमोरी तक रोड को पहुँचा दिया। अब जैसे ब्रिज बनेगा होमोरी पहुँच जाएगा और होमोरी से यहाँ 1-1.5 साल में रोड कनेक्टिविटी मिल जाएगी और टूरिज्म का जो इनफ्लो जो है वो बूस्ट हो जाएगा। जी, तो ये थे हमारे साथ श्री देसराज जी। तो उन्होंने आपको गोम्पा के बारे में बताया और जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में बताया।
चलो, नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी हम गोंडाना गांव में हैं, जो कि मचेल में पड़ता है। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये यहीं से मतलब यहाँ से आगे जाते हैं। पीछे जो है ये गोंडाना विलेज है, यहाँ पे करीब कुछ 10-12 घर हैं। तो आबादी भी यहाँ की कम है, लेकिन यहाँ की जो नज़ारे हैं बहुत खूबसूरत हैं। हम अभी मचेल से यहाँ आए, लगभग 4-4.5 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया, और जो रूट था वो पैदल रास्ता था। मतलब आपको कोई वाहन वहाँ पे नहीं मिलेगा, पैदल चल के आना होगा। रास्ते में हमने बहुत सारे झरने देखे, वहाँ पे एक नदी भी है, उसके ऊपर एक लोकल्स ने जो है छोटा सा लकड़ी का एक पुल जैसा बनाया हुआ है, वो भी बड़ा खूबसूरत है। यहाँ के जो पहाड़ हैं उनका व्यू भी बहुत अच्छा है। तो मैं निवेदन करूँगा आप सभी से कि आप आएँ हमारे साथ यहाँ पे, और यहाँ की जो वादियाँ हैं, यहाँ के जो नज़ारे हैं, उनका मज़ा लें। तो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे अपनी वीडियो में जो गोंडाना विलेज है, इसकी कुछ नज़ारे और यहाँ के जो मकान हैं वो किस तरीके के बने हुए हैं। तो अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। आपको यहाँ के बारे में बताएंगे। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम है श्री तोबन और मैं दंगेल गांव से हूँ। तो दंगेल जो मचेल से लगभग 122 किलोमीटर आगे है। हमारा जो गांव है ना, वो जो शिव पहाड़ है उसके ठीक नीचे बसता है। आप लोगों ने शिव जी का दर्शन किया होगा मचेल से, उसके ठीक नीचे हमारा गाँव बसता है। और अगर यहाँ से अगर शिव पहाड़ मतलब ट्रैक करना होगा तो आपको 2 दिन का ट्रैक है। 2 दिन ट्रैक करते ही आप वहाँ पहुँच के दर्शन करके वापस आ सकते हो। पैदल रास्ता से? पैदल रास्ता से। तो वहाँ पे जाने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है? एक्सपर्टीज़ का आपको हाँ वो तो लेना पड़ेगा। फिर ऐसे विदाउट कोई गाइड के आपको रास्ते के पता नहीं होगा। थोड़ा रास्ता थोड़ा डेंजरस है? डेंजरस हाँ है थोड़ा बहुत। मैं खुद एक बार गया था, थोड़ा वहाँ तक तो नहीं पहुँचा, आधे रास्ते तक। वहाँ पर हमने स्टे किया नाइट, फिर हमने वहाँ से वापस किया था। तो आप हमें बता सकते हैं सर्दियों में यहाँ पे कितना टेम्परेचर नीचे जाता होगा और यहाँ बर्फ़ कितनी पड़ती है? सर्दियों में तो टेम्परेचर यहाँ माइनस में ही जाता है, क्योंकि चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ होता है। बर्फ़ कितना लगभग 5 to 6 फीट होता है। और सर्दियों के टाइम पे यहाँ कोई नहीं होता, मतलब पूरा गाँव खाली। सारे सब जितने भी मतलब लोग हैं सब जाते हैं जम्मू के लिए। और यहाँ होते हैं मतलब 3-4 गाँव घर ऐसे हैं जहाँ मतलब लोग रहते हैं यहाँ गर्मी में सर्दी में भी। उनका मेन रीज़न है कैटल्स वगैरह है ना, उनके बहुत सारी कैटल्स है, तो उनको उनके साथ यहाँ रुकना पड़ता है। बाकी जिनके पास नहीं है वो जाते हैं आगे नीचे मतलब जम्मू, वहाँ होता है 2-3 महीने सर्दियों का। बस यही है। तो यहाँ पे जैसे फसल वगैरह जो आप कौन सी उगाते हैं? फसल जो मेन जो हमारा वीट है और बार्ली और पल्सेस वगैरह, राजमा आ गया, मटर आ गया और आलू, बस यही है 3-4। तो इसमें प्रॉफिट और एक होता है बकवीट। वो क्या चीज़ होगी? बकवीट मतलब एक ब्लैक कलर का सीड्स होते हैं, जिससे वो यहाँ लोकल जो हिंदू है ना वो उनको बोलते हैं क्या बाले को सीधे ना ट्रावल सीधे ना, जिसे थोता बनते हैं यहाँ, मतलब वो गुड फॉर हेल्थ होता है। और ऐसा लोगों का कहना है कि वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है बकवीट। तो यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं? वैसे टूरिस्ट वगैरह उतना तो नहीं है, मतलब फ़िलहाल
एक्का दुक्का आते हैं। एक यहाँ पे होम स्टे नाम का एक स्टे भी है, कभी कभार वहाँ पे आते हैं ऐसे, मतलब एक्का दुक्का कभी कभार। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे टूरिज्म का कितना स्कोप है? स्कोप तो बहुत है। यहाँ से आगे अगर आप जाओ एक दिन का ट्रैक करके तो एक एरिया ऐसा आता है जहाँ, जिस एरिया का नाम है, एरिया का क्या नाम है एग्जैक्ट उस लोकेशन का नाम नहीं पता। वहाँ पे आपको वो दिखेगा गैलेक्सीज वगैरह जी, वो है प्रॉपर स्टार सब कुछ वो दिखेगा। हाँ, वो है मेन मतलब टूरिस्ट एरिया। फिर ऐसे एक और वो भी है, स्पॉट भी है जिसको हम बोलते हैं चुमू शहर, जहाँ पे मतलब चुमू का मतलब होता है नन होता है। ऐसा माना जाता है कि उसके पीछे कहानी है। कहानी ये है कि मतलब ऐसा कहना है लोगों का कि पहले यहाँ से लोग वहाँ गए थे, मतलब नन जितने भी है ना, एज ए पिलग्रिम गए थे, पिलग्रिम वहाँ पहुँच के उस लोकेशन पर पहुँच के जितने भी मतलब यहाँ से मॉन्क मतलब नन गए थे, सब के सब वहाँ जाके मतलब पहुँच के सब स्टोन में कन्वर्ट हो गया। मतलब आज भी ऐसा हमें दिखता है वहाँ पे ऐसे, मतलब मेन रिंग के शेप में पूरा स्टोन वहाँ पे जी। हाँ, एक वो है। तो वो कितना दूर होगा वहाँ से? वो इतना ही है, मतलब 1-1.5 दिन का सफ़र है यहाँ से। पूरे दिन चलना है? पूरा दिन चलना पड़ेगा आपको, इधर राशन पानी सबको यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। तो वहाँ क्या लोग जाते रहते हैं? लोग जाते हैं, टूरिस्ट भी वहाँ जाते हैं। वहाँ फिर एक हमारा मेन तो ये आ गया ना, सफ़ायर माइंड, आप लोगों ने सुना होगा। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा कुछ किया है यहाँ पर टूरिज़्म को लेकर? टूरिज़्म को लेकर गवर्नमेंट ने अभी तक फ़िलहाल तो कुछ नहीं किया है, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं किया है। अब पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तो MLA किश्तवाड़ सुनील शर्मा जी यहाँ आए थे। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि टूरिज़्म के लिए हम यहाँ पे एक टूरिज़्म हब सेंटर खोलेंगे। उसके बाद मतलब कुछ हुआ ही नहीं, जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ सब कुछ हो गया, उसके बाद मुझे देखा भी नहीं। तो जो नीचे रोड बन रही है, तो आपको लगता है कि इसमें कुछ फ़ायदा हुआ? रोड बनने के बाद वो टूरिज़्म हमारा प्रमोट होगा, वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे लोकेशन रिव्यूज़ है वहाँ पे। हाँ, वो अभी फ़िलहाल टूरिज़्म ना आने का मेन रीज़न तो वही है, मतलब रोड का। हाँ, क्योंकि लोगों को चलना पड़ता है, वो पसंद नहीं करते, लोग प्रेफर नहीं करते, इसीलिए। अगर जैसे रोड बन जाता है तो मुझे लगता है कि हमारा एरिया जो है ना वो एक टूरिज़्म हब बन सकता है, कश्मीर को टक्कर दे सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे व्यूज़ है हमारे यहाँ से आकर। अगर जाए आप चल के 1-1.5 दिन का सफ़र करने के बाद ऐसे ऐसे व्यूज़ है। लेकिन ये जो ट्रैक वगैरह पे जिनकी आप बात कर रहे हो, ये तो मतलब गर्मियों के टाइम में? गर्मियों के टाइम पे है, मतलब यही 3-4 महीना। उसके बाद जैसे ही सितंबर अक्टूबर शुरू हो जाता है, फिर आगे तो टेम्परेचर जो है ना माइनस में जाता है, उस टाइम पे मुश्किल होता है उस टाइम पर। तो ऐसा कभी देखा आपने कि गर्मियों के मौसम में यहाँ पे कभी बर्फ़ पड़ी हो या कभी ज़्यादा है? फिर अक्टूबर में फिर ऐसे फिर शुरू हो जाता है बर्फ़ जी। अभी जैसा धूप वगैरह का मौसम रहता है, बरसात का क्या यहाँ पे हिसाब रहता है? मतलब बारिश कब पड़ती है? मतलब गर्मियों के दौरान बारिश पड़ती है या फिर सिर्फ सर्दी? नहीं, गर्मियों में सिर्फ ये एक ही महीना है, अगस्त का महीना में जो मानसून हमारा आता है ना इंडिया में, बस वही यहाँ पे मेन होता है, अगस्त का महीना। उसमें एक ही महीना होता है बस बारिश, उसके बाद नहीं। मतलब अभी जैसे जून जुलाई हो गया ना, इंडियन बारिश नहीं होता, मतलब ऐसे हल्की फुल्की होता है, जैसे डेली होता है, ऐसे हल्का फुल्का। मानसून जो मेन होता है वो अगस्त में होता है बस। तो यहाँ पे कोई जैसे जड़ियाँ भी बहुत होती हैं, तो ऐसा कोई इम्पोर्टेंस जड़ी बूटियाँ तो यहाँ वैसे बहुत है। यहाँ पे एक हकीम भी हुआ करता था पहले, ये जो घर है ना उसी का घर है हकीम का। वो पहले मतलब लोगों को यही जड़ी बूटी मतलब कलेक्ट करके लोगों को देते थे, एज ए मेडिसिन करते थे। अब वो पिछले मतलब 1 साल उसको हो गया, उसकी डेथ हो गई, उसका कोई है ही नहीं। मतलब ऐसे बहुत जड़ी बूटी है, मतलब प्लांट्स है जिनका हम यूज़ डेली हम खुद करते हैं, आज भी करते हैं, जिनके बारे में नॉलेज है वो हम आज भी करते हैं। जैसे एक ग्रास है, यही आगे आपको मिल जाएगा जंगलों में, उसको हम एक नाइट मतलब पानी में भिगो के नेक्स्ट डे आप उसको एज ए आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। उससे आपका आईज में जो प्रॉब्लम है वो एकदम से ठीक हो जाएगा। मैंने खुद यूज़ किया ना, मैं खुद ही बोल रहा हूँ इसे। मतलब अच्छी चीज़ है। मतलब ऐसे यहाँ पे मेडिसिन बहुत हैं, ऐसे मेडिसिन बहुत है। अब जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए मतलब अगर एक्सप्लोर किया जाए यहाँ पे तो वो तो फिर बहुत है। तो अभी हम डंगेल में थे, तो भाई साहब ने आपको बताया यहाँ के बारे में, तो
तो थोड़ा बहुत उन्होंने यहाँ पे आपको मेडिसिन के बारे में बताया, थोड़ा कल्चर के बारे में बताया। तो हम अभी आपको आगे दिखाएंगे यहाँ का जो व्यू है रंगेल गांव का, वहाँ का आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो उससे एक आटा टाइप बनता है, उसको हम एज वो पैन केक होता है ना, वो यूज़ करके हम खाते हैं। पैन केक टाइप ही होता है, वो होता है मतलब थोड़ा सा येलोइश कलर में होता है। ऐसा लोगों का कहना है कि वो कैंसर के लिए मतलब ठीक होता है। जो आपने वही मैंने एक फिर हमारा जो कुजीन जो है वो लद्दाख से बहुत मतलब रिलेटेड होता है, मैच खाता है। जैसे थुप्पा आ गया, वो हम डेली यूज़ करते हैं। कभी फिर जो पेशेंट होते हैं उनको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं थुप्पा, क्योंकि वो अच्छी होता है। सत्तू मतलब जिससे बनता है। जी जी हाँ, सत्तू। हाँ। और पवा मतलब सत्तू का ही बनता है आटा टाइप, जी। उसको हम खाते हैं घी के साथ। जी। वो मतलब वो अलग कुजीन वगैरह है हमारे पास। बाकी आपको नीचे कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ यहाँ मतलब गाँव में जो बुद्धिस्ट एरिया गाँव है ना, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा पावा टोकू। जो अभी मैंने बोला ना आपको बकरीद का, उसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं टोकुर। मतलब जिससे वो केक बनता है ना, बनने के बाद जो फाइनल हमारा आता है रिज़ल्ट, उसको हम बोलते हैं टोकुर। हाँ, वो हम खाते हैं। मतलब वो हमारे लिए तो वो नॉर्मल है, हम डेली का खाते हैं। लंच के टाइम पे ज़्यादा वो करते हैं, प्रेफर करते हैं। पॉपुलेशन वगैरह यहाँ की कितनी होगी? गाँव में कि पूरा बुद्धिस्ट एरिया का हो? ये आपका ये गाँव जी जी होंगे मतलब मैक्सिमम 150 इतना ही है पॉपुलेशन। मतलब जो लोग हैं वो यहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो रोड का आ गया, ट्रांसपोर्टेशन का एक फैसिलिटीज़ वो नहीं रहा, लाइट का नहीं है, नेटवर्क्स भी नहीं है। इसीलिए मतलब जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सब जितने भी हैं सब नीचे ही होते हैं। यहाँ होते हैं जो बूढ़े वही मतलब जिनका यहीं पे काम हो, कैटल से रिलेटेड थोड़ा। हाँ, बस वो यहीं पे रहते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं जी। तो घर भी यहीं पे कुछ 10-12 घर होंगे यहाँ पे? टोटल 13 घर है यहाँ पे। और घर भी मतलब इनका अपना यूनिक स्टाइल है, लकड़ी और स्टोन्स का। और ऊपर से जो लिपाई होता है ना, वो मड का होता है जी। मड यूज़ करने का मेन रीज़न है गर्म के लिए, क्योंकि सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर माइनस में जाता है, और मड जो है ना वो अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है जी। हाँ, इसीलिए मड का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तभी इसी को यूनिक स्टाइल है। और इंटीरियर का डिज़ाइन है ना, वो भी अलग ही होता है। मतलब कैटल्स को रखने के लिए अपना एक अलग सा रूम टाइप बना होता है इंटीरियर में। अगर देखो ना, जैसे कैसे मतलब घर के नीचे कैटल्स होती हैं वो, जैसे एक आगे रूम जी जहाँ पे हम लोग रहते हैं जी, उसके जस्ट बगल में कैटल्स रखने के लिए एक अलग सा वो डिज़ाइन का बना होता है। वहाँ पे कैटल्स रखते हैं सर्दियों में, ताकि जब उनको दिया जाता है घास वास तो उनको आगे पीछे करना होता है ना घास को जब, इसीलिए मतलब साथ में ही होता है ये रूम। यहाँ पे जहाँ पे लोग रहते हैं उसके जस्ट बगल में वो बना होता है जहाँ पे कैटल्स रखते हैं। अगर आप चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ कैसे कैसे उसका इंटीरियर का डिज़ाइन जी। ये और क्या था यार, मेरे पास दोस्त को ये है ना सर्दियों के मतलब 3-4 महीने यहाँ रहते हैं। आग जाती है इसमें, ये मतलब चूल्हा बोलो जो बोलो, इसी में लोग रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे होते हैं ये कैटल्स वगैरह यहाँ पे रखते हैं हम। यहाँ पे कैटल्स रखते हैं इनके लिए अपना अलग से। और यहाँ पे हम रखते हैं लकड़ी जी स्टोर करके। मतलब बर्फ़ इतने होते हैं ना वहाँ पे 5-6 मतलब फीट होते हैं जी जी। मतलब बर्फ़ पड़ने से पहले हम यहाँ पे रखते हैं लकड़ी स्टोर करके यहाँ पे। और यहाँ पे होते हैं कैटल्स। ये सारा जो ये लकड़ी का बना ये सारा लकड़ी का सब कुछ जी। और अगर उनको अंदर बाहर करना होगा तो ये है गेट, और ये है लॉक ताकि ये गिरा ना दे कैटल्स। और यहाँ पे रखते हैं वो काफ, मतलब उनके जो बच्चे वगैरह ना उनके लिए एक अलग सा मतलब ये उनका यहाँ से बन जाए। ये क्या चीज़ है ये ऊपर? ये अंडा अंडा हाँ अंडा तो उसके शेल है ना खाली। मतलब यहाँ पे वो होता है ना अंधविश्वास है। अच्छा, हम इसको एज वो कहते हैं यूज़ तारीफ वगैरह। अच्छा। तो उस टाइम लाइट का सोर्स क्या होता है यहाँ पे? सोलर
सोलर का। हाँ तो यहाँ ऐसे बड़ा अंधेरा है ऐसे। सोलर है, सोलर लकड़ी आपको अच्छी खासी स्टोर करके रखनी है। स्टोर ये जितने भी है ना खाली है ना इन सबको मतलब फुल करना पड़ता है। हाँ लकड़ी यहाँ पे कैटल भी अच्छे खासे ऐसे जो गोबर वगैरह वो निकालते हैं, मतलब महीने 2 महीने के बाद निकालना पड़ता है उनको। सारे मिट्टी का ही है, ये लकड़ी का आ गया और ये आ गया मतलब स्टोन का, जी। ताकि इनका वो जो पकड़ है ना मजबूत, वो स्ट्रॉन्ग मतलब बनाने के लिए। और ऊपर से लिपाई आ गया मतलब उसका मड का, ताकि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा सर, इसीलिए। ये दीवार की चौड़ी होगी काफ़ी। दीवार तो चौड़ी है, मतलब इतना ही है ना, देखो मतलब लगभग ये 1-1.5 फुट। हाँ ऐसे ही कुछ चौड़ी दीवार है। लाइट का सोर्स अभी वो है अभी ये। हाँ मतलब यहाँ पे अभी बैटरी वगैरह ऊपर है ना जी, उनका कनेक्शन होगा शायद, वहाँ तक मुझे लग रहा है कनेक्शन है। हाँ है, मतलब 3-4 बने बल्ब होते हैं यहाँ पे, कहाँ पे बर्फ तो काफ़ी मतलब 6 फुट तो बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब एट ए टाइम 5-6 फीट पड़ते हैं यहाँ पे। 5-6 हाँ एट ए टाइम। उसके बाद जो फिर को निकलने में भी टाइम लगता है, पूरा अप्रैल का महीना पूरा में से कुछ लग जाता है उसका निकलने में। तो कैसे मतलब जैसे आलू वगैरह उस टाइम या फिर आलू वगैरह हम उनको वो करते हैं ना, खड्डा खोदते हैं, उसमें रखते हैं आलू आलू को, वो ताकि भी अंदर ही या बाहर कहीं? बाहर ही रखते हैं, अंदर भी रखते हैं। अंदर हमारा यहाँ से एक नीचे पर वो है ना, मतलब कमरा टाइप है, जी वहाँ पे वो खड्डा बना होगा, वहाँ पे हम आलू रखते हैं स्टोर करके, ताकि वो ख़राब ना हो। जी। तो फिर बाकी जो सब्ज़ी वगैरह है वो तो मैक्सिमम सूखी हुई होती है। हाँ तो आटा वगैरह हो गया, जैसे आटा वो हाँ वो भी स्टोर कर लगभग कितना वैसे रखते हो यार? अब यहाँ पे रहने वाला कोई है ही नहीं, मम्मी पापा है सिर्फ, तो उनके लिए कितना मतलब लगभग फिर भी 100 kgs। हाँ ऐसा ही कुछ 100 kgs या 200 kgs। हाँ इतना ही मान के चलो, 4-5 महीने का स्टॉक रखना पड़ता है। रखना पड़ता है। 4-5 के नीचे एक और वो है, मतलब वहाँ पे ऐसी टाइप बना होगा जहाँ पे चल सकते हैं ना। जी जी। हाँ वहाँ पे रखा है घोड़े वगैरह। यहाँ पे नहीं रहेगा। वो जो जब हमारा मतलब शुरू में मतलब स्टार्ट होता है, पहले दिन हम करते हैं घर की सफाई वगैरह, उस दिन पूरे घर में मतलब सफाई होते हैं। फिर ये जो लिपाई होता है ना वो हम नया करते हैं फिर से, उस मतलब लोसर के लिए, नया साल के लिए। फिर उसी शाम को मतलब जिस दिन हम लिपाई करते हैं ना, सफाई करते हैं, एक घर में जाते हैं, पुजारी का घर होता है, वहाँ सब लोग जाते हैं, मतलब एक जग वो छांग मतलब जी छांग हाँ, वो लेके हैं। हाँ फिर उसी घर में वो मतलब पार्टी शार्टी होते हैं, बेड़ू काटते हैं, मतलब वो जो फर्स्ट डे का जो है ना नाइट, उधर हम करते हैं मतलब स्टे पुजारी के घर में। फिर नेक्स्ट डे होता है किसी और के घर में, फिर वहाँ पे होते हैं सेम मतलब एज ए खाना पीना सब कुछ उधर ही होता है। फिर एक उसके अगले दिन हमारा मेन फेस्टिवल होता है। उस दिन क्या होता है कि मतलब शाम को 13 घर है ना, सबके घर में हम जाते हैं मतलब घूमने के, उसको हम बोलते हैं छनखोर बोलते हैं, उसको एक प्रॉपर मतलब यूनिक नाम सा लिया गया है छनखोर। उसमें क्या होता है कि जैसे पहले सबसे पहले आया हमारे घर में, हमारे यहाँ पे होता है वो छांग पीना, जो कुछ खाना पीना होगा वो खाते हैं। फिर उसके बाद जाते हैं किसी दूसरे घर में, वहाँ पे भी ऐसे ही सेम होते हैं। उसके बाद ऐसे करते करते मतलब जितने भी घर हैं ना वहाँ सब के घर में जाते हैं। फिर लास्ट में होता है हल्ला नाम का एक मतलब लकड़ी को पतला पतला काट के उसका एक लंबा सा वो बनाते हैं जी।
मशाल टाइप जी। है ना। फिर सुबह मतलब 12 बजे के बाद कभी भी हम उसको जला के फेंक देते हैं। ऐसा उसको फेंक के हम ऐसा मानते हैं कि जो मतलब जो साल था जैसे भी गया मतलब बीत गया, जो नया साल आने वाला उस सब के मतलब लाइफ में सुख मतलब सुखी शांति जो लाएँ, ऐसा हम वो करते हैं ना। उसके बाद हम उसको फेंक देते हैं। मतलब ये फेस्टिवल में होता है। फेस्टिवल में होता है। कब वैसे जैसे कैलेंडर के हिसाब से कैलेंडर के हिसाब से होता है, हिंदू कैलेंडर है ना उसके हिसाब से होता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब मतलब से हिंदू जैसे हिंदू कैलेंडर में 9 वर्ष होता है। हाँ, तो उसी हिसाब से होता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होता है। नए साल के टाइम पे अगर वो डिज़ाइन गायब होगा या मिसिंग होगा तब भी फाइन भरना पड़ेगा आपको। इनके ब्लैक इस ब्लैक के ऊपर पे हम ये बाद में वो डिज़ाइन मिट जाता है। मिट जाता है। अच्छा। डिज़ाइन मिट जाता है, मतलब वो टेम्परेरी होता है। ये डॉट्स वैसे जो ऊपर हैं ये कितने होते हैं लगभग? ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इनका फिगर्स कितने हैं क्या है, मगर ऐसा होता है कि अगर जिनके घर मिसिंग होगा तो उनको फ़ाइन भरना पड़ेगा। जितने भी ये जितना ब्लैक पट्टी है ना उन सब पे मतलब वो होता है फिगर्स बनते हैं मतलब नए साल के टाइम पे। हाँ, अगर मिसिंग होगा बाई चांस एक कुछ भी तब फाइन भरना पड़ेगा। और ये हम रखते हैं जैसे पहले ऐसा नहीं होता था, जैसे ये ना बंद है अलमारी, ये तो मतलब मॉडर्न आ गया ना। पहले यही होता था, जो भी था मतलब जो बर्तन रखना जो कुछ रखना यहाँ ये बस यही होता था। एक पहले एक ही बस यही छोटा सा एक ही गिलास रखो बाउल रखो जो कुछ रखना इसी में रखना है। हाँ, और जो पतीले ना वो यहाँ पे हम रखते थे मतलब इसके ऊपर। तो ये भी पहले का बना हुआ है? ये भी पहले का ही है। अच्छा, इसके अंदर आप इसके अंदर हम रखते हैं वो केटल मतलब कप वगैरह जो मतलब न्यू बॉर्न होते हैं ना उनको यहाँ रखते हैं। मतलब नए न्यू बॉर्न होते हैं यहाँ होते हैं मतलब फिर कुछ उनको टाइम होने के बाद मतलब वीक होने के बाद उनको वहाँ करते हैं शिफ्ट उस वाले में। न्यू बॉर्न यहाँ पे होते हैं। पूरा आपका पूरा सिस्टम लगा सकते हैं ऊपर वाले उसमें फ्लोर में ना। तो हम जब देना होगा एनिमल्स को हम यहाँ से गिराते हैं घास को ना। यहाँ पे एक बना होगा विंडो टाइप ना, यहाँ से घास को नीचे गिराते हैं जी। वो कैसे मतलब किसी डंडे के मतलब डंडे के अपने हेल्प से ना। तो घास अब वो जो होगा वो थोड़ा ऐसे चूरे की टाइप में होगा। चूरे के टाइप में होगा, वो भी होगा वैसे घास भी। अच्छा, वैसा भी होगा। ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, वो वहाँ से हाँ। मतलब ये नहीं कि मतलब लेके आपको चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं पड़ेगा, बस खाली ऊपर जाना है गिराना वहाँ से। तो ऐसा कभी कि कोई जैसे सांप वगैरह हो? कुछ सांप हमारे गांव में नहीं आते। ये जो मतलब रोशनी गांव देखा होगा ना, हाँ जी, वहाँ से आगे हमारे गांव ये जो आगे एक मैदान है, हाँ जी, उससे आगे एक पुल है। वो पुल क्रॉस करने तक आपको एक भी सांप देखने को नहीं मिलेगा, एक भी सांप। ऐसा क्यों? मतलब कुछ है यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे नहीं पता, मगर सांप आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप बेफिक्र जहाँ चाहे लेट सकते हो। मतलब ऐसा हमने देखा कि नदी इसकी वहाँ से भी है, ऊपर से भी है, पूरा इलाका भी ठंडा है। तो उस वजह से मुझे लगता है हो सकता हो कुछ जड़ी बूटी हो या कुछ वैसा हो कि सांप उसके नज़दीक ना आए। ऐसा भी हो सकता है, मगर सांप आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो जो पुल है ना, जैसे पुल क्रॉस किया वहाँ से और एक पुल आगे है, वो क्रॉस करने तक आपको सांप कुछ नहीं। मतलब कभी भी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, इंसान को काटा, सांप का कोई इशू नहीं है। मतलब सेफली यहाँ पे इंसान रहते हैं। फिर यहाँ से आगे एक और गांव बोला ना मतलब जचेड़ी नाम का, वहाँ पे सांप बहुत होते हैं। जचेड़ी में बहुत ज़्यादा। वहाँ पे मतलब केव्स होते हैं ना, पहले वहाँ पे लोग रखे थे दूध वगैरह मतलब दही वगैरह उसमें मटके में। तो ऐसा मतलब सुनने में आता है कि मटके के ऊपर सांप ऐसे लिपटा हुआ वहाँ पे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ स्कूलिंग वगैरह जैसे कोई जो बच्चे होंगे, जो छोटे बच्चे अभी स्कूलिंग वगैरह कहाँ, वो गुलाबगढ़ साइड? गुलाबगढ़ में ही जाते हैं सब, वहीं पे स्टे करते हैं ना। अच्छा, स्कूल तो यहाँ नाम का ही है, प्राइमरी स्कूल है जी, छोटे बच्चों के लिए। मतलब नाम का ही है, बच्चे तो एक भी नहीं है। मतलब आपके गाँव में या फिर? हमारे ही गाँव में है। अच्छा, गवर्नमेंट है। मतलब जैसे हायर एजुकेशन के लिए फिर किश्तवाड़ वगैरह जाता है, में आपकी 12th वगैरह हो गई तो उसके बाद या तो वहाँ से कॉलेज करो या फिर जम्मू जाओ। मतलब यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम है। गुलाबगढ़ में भी एक कॉलेज है? गुलाबगढ़ में कॉलेज आए 1-2 साल हो गया, वहाँ पे GDC है।
उससे भी मतलब लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, जैसे कुछ पीपल नहीं जा पाते या वहाँ पे मतलब मेडिकल स्ट्रीम नहीं है, मेडिकल स्ट्रीम मेडिकल स्ट्रीम नहीं है, आर्ट स्ट्रीम नॉन मेडिकल भी नहीं है, सिर्फ आर्ट्स सिर्फ आर्ट स्ट्रीम है। आस पास तो वो भी हम्म। आ गया है। उसी टाइम आज तो ये ना सोलर है, पहले मतलब जब हम मतलब छोटे थे उन दिनों तो वो लकड़ी हम यूज़ करते थे, उसको छोटे छोटे पीस में काट के उसी को हम जलाते थे एज अ लाइट, लकड़ी का। जैसे आपको पता नहीं आप अपने उसमें क्या बोलते हैं भाषा में, उसको क्या बोलते हैं, ये जो लकड़ी है इसमें वो इसी को हम काटते हैं छोटे छोटे पीस में, देवदार की है मतलब जिसमें छोटे छोटे पीस में काटते हैं, अच्छा, छोटे छोटे पीस में काटते हैं, उसी को हम एज अ लाइट यूज़ करते थे। अच्छा हाँ, और पहले छोटे छोटे पीस इसको किसी आप बाउल वगैरह में पत्थर पे रखते थे, पत्थर पे हाँ ओके। उसी पे तो ये कितना टाइम चलता होगा? मतलब वो हम अपने पे डिपेंड है ना, मतलब जितने टाइम आपको रहना है उस हिसाब से आपको काटना पड़ता है, मतलब उतने टाइम का पहले काट के छोटे छोटे पीस का मतलब करके बस, जैसे 3-4 घंटे के लिए आपको रहना होगा रात को, बस फिर उतने टाइम के लिए हम काट लेते हैं पहले से ही, शाम का टाइम, बस फिर इसमें कंटिन्यूसली आपको डालना पड़ता है कंटिन्यूसली, जैसे वो बुझेगा वैसे। तो ऐसे जैसे इसमें आप आग जलाते हो खाना खाने के लिए, तो इसकी भी लाइट होती होगी थोड़ी बहुत होती है, फिर ये तो अपना अलग से जलाना पड़ता है ना, मतलब ये चूल्हा है ना, उसके एक साइड में एक पत्थर होता है छोटा सा जी, उस पर रख के हम जलाते हैं, मतलब जलाते थे पहले, अब नहीं, अब तो सोलर। हाँ तो सोलर ये तो तब थोड़ी बहुत धूप से भी चार्ज भी होता होगा। इसका तो चलेगा। ऐसे गर्मियों के टाइम में आप ऊपर बैठते हो? ऊपर गर्मियों के मतलब ये 5-6 महीना ऊपर होता है, हाँ जी। फिर सर्दियों के मतलब 5-6 महीना यहाँ नीचे, जो कि केटल्स को रखना होता है, हाँ तो यहाँ पे आग जलते हैं, तो इसकी जो गर्मी है ना, मतलब जो बोलो उनसे ये भी गर्म रहते हैं, तो हम ये इसीलिए हम इनको साफ नहीं रखते केटल्स को। और इसमें थे वो दिल्ली से आए हैं? उनका मुझे उतना आइडिया नहीं है ज़रा, वो यहाँ तो नहीं आए थे, जो गुलाब का है वहाँ तक तो आए थे, मतलब मार्च तक चलेगा चंबा से गुलाब का। यहाँ से होगा पार्टीशन के बीच में से, एक आ गया पार्टीशन ये वाला, एक आगे यहाँ से आगे ये लकड़ी का है पूरा, ये बहुत पुराना है, मतलब मेरे दादा या परदादे के टाइम से है ये। इनको आप क्या बोलते हैं भाषा में? खेरी, खेरी। हम किश्तवाड़ी में इनको बुखार बोलते हैं। अच्छा वहाँ भी होता है। सीधा रॉक ही नहीं है, मतलब रास्ता ठीक है, चढ़ाई है थोड़ा रास्ता, जंगलों से तक जाना पड़ता है। जब स्कूल में बच्चे थे तो सोल से एक टीचर था रमेश नाम का, वो मतलब एज अ यूजुअल ऐसे गए थे वॉक पे शाम का टाइम, वहाँ चौकी मैंने बोला ना वहाँ पे, तो उसने क्या देखा कि मतलब रास्ते में एक होता ना डब्बा, टीन का डब्बा, उसका ढक्कन है, मतलब छोटा सा टुकड़ा ऐसे बाहर था, उसने क्या किया उस टुकड़े को लात मारा टीन के डब्बे को, वो टीन का डब्बा पूरा बाहर आया, वो बाहर के पूरा नीलम। जैसे उसको मिला डब्बा, उसने गवर्नमेंट की जो था जॉब थी टीचर, वो छोड़ दी उसने। ब्लू स्टोन होता है, बिल्कुल प्योर ब्लू होता है। रॉ फॉर्म में भी रॉ फॉर्म में थोड़ा वाइट और मगर जो प्योर होगा ना वो तो बिल्कुल ब्लू होगा जी। हाँ वाइल्ड है ना, उसको स्मेल तो ले सकते हो। वाइल्ड में हाँ पुदीना, हाँ बहुत तेज़ स्मेल है इसकी, वाइल्ड है ना, बाकी जो होता है वो हो रहा है, स्मेल बहुत तेज़ है इसकी। इसको खाने में यूज़ करें, चटनी के बनाते हैं इसको, इसको इसकी स्मेल नॉर्मल मिंट से बहुत तेज़ है, मतलब बिना तोड़ने के बाद बिना सूंघे ही स्मेल आ रही दूर तक। जब कच्चा होता है ना फिर वहाँ स्टोर में होगा शायद। ये क्या चीज़ है? इसको नाम तो मुझे नहीं पता, इसको हम ऐसे अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ज़च्छोट। इसकी सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी होती है। स्टोर में बनते हैं मगर ऊपर वाली तरफ।
जो घर है ना, तो वहाँ ढूंढने पे मिल जाते हैं, मतलब प्योर। गाजी आ गई, इसमें हम बनाते हैं चटनी। ये बहुत खट्टा होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा है। अब इसकी जगह पे कर सकते यूज़, इमली की जगह पे। ये नहीं ये वाला खट्टा होगा। और एक ही है, इसकी सब्ज़ी बनती है, सब्ज़ी इसकी भी। उन्होंने उसमें वो छोड़ दिया इंटरेस्ट वगैरह, तो बस वैसे ही बेबदी वो ख़त्म हो रहा है, हो रहा है। मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है, उनको कोई ध्यान नहीं आता। ये वाले जो ये शायद सौंप है, साबुन ऐसे साबुन इसको इसके पत्ते को थोड़ा क्रश करके उसके बाद यहाँ से वो जाग निकलते हैं। एक दो पत्ते उठा के ले आओ। ये ज़्यादा आपको जहाँ पे ना पानी होता है वहीं मिलेगा, मतलब पानी के आसपास ये वाले प्लांट्स से। बिजली भी आज मतलब पिछली बार आया था ट्रांसफार्मर, मैंने ट्रांसफार्मर को लगाया गलत जगह पे, पानी के बीच में रखा है। इसको स्टे में मतलब मैंने किया था कि डेंजर है ना, अगर यहाँ से वो पानी होता है अगर कुछ नहीं होता डिफॉल्ट। हाँ इसको शिफ्ट करना है। इनका मुझे उतना नॉलेज नहीं है, मतलब मैंने एक बार खाया ना, मतलब ऐसे मतलब सुना था वहाँ पे तीखा वाले होता है तीखा। ब्लैक सा फ्रूट अभी कच्चा है ना, ग्रीन ग्रीन दिखा होगा, हाँ पकने के बाद बिल्कुल ब्लैक होता है, जैसे ना अंगूर होता है ना, बस वैसा ही होता है। हाँ इसी को आप कैंसर हो गया नहीं, वो तो बकवीट अलग, वो अलग होता है। वहाँ बकवीट है उसका प्लांट्स। अब मैं देखता हूँ अगर बड़ा होगा तो ऐसे आप उसको बकवीट को लोकल में नहीं ऐसे आगे डिमांड नहीं होती, डिमांड नहीं होती, हमको पता नहीं होता, पता नहीं होता। बीच बीच में पास भी क्या करो ना। ये वाला था, ये वाला था खट्टा खट्टा है बहुत वाला जी, जो बोल रहा हूँ ये वाला खाते हैं। ये भी ऐसे सब्ज़ी नहीं, ऐसे ही मतलब टेस्ट के लिए खट्टा होता है। बस अभी ऐसे दातुन इस्तेमाल करते हैं, दातुन भी है कुछ नहीं हो रहा है। स्ट्रॉबेरी और वो अभी
फैमिली वाला वही बोला इकट्ठा होता है ना। ये जो फ्लावरिंग यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं, फ्रूट है ये फ्रूट है ये हेज़लनट। इसके अंदर से आपको अभी देखने को मिलेगा, मगर वो कच्चा होगा। ये ना हेज़लनट्स, इसके अंदर से अभी कच्चा होगा हेज़लनट। ये ना जी हेज़लनट, इसका चॉकलेट भी बनता है ना। इसको आप ऐसे मतलब लोकली यूज़ करते हो या फिर खाते हो या फिर ऐसे ही खाते हैं, मतलब जितना खाना होगा उतना हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट उसके बाद बाकी तो ऐसे ही वेस्ट पड़ा होता है, कोई नहीं करते हैं कलेक्शन। ना सेल बेचने के लिए यूज़ देखने को मिलेगा वहाँ पे, तो आगे जाके ये सारा अनएक्सप्लोर्ड मतलब अनएक्सप्लोर है। जो लोकल हैं, जो यात्रु कोई आ गए तो उनको पता चला, नहीं तो ऐसे ऐसे बस। अब पिछले 1-2 साल से हो रहा है, मतलब एक का दुकान है टूरिस्ट है, ये लामू है ना, लामू होम स्टे, उनकी वजह से मतलब ये खुद जाते हैं ना यहाँ, मतलब उसके लिए। अच्छा हेलो एवरीवन, तो अभी हम आ चुके हैं सिंगजाम विलेज में, जो कि जम्मू कश्मीर का लास्ट विलेज पड़ता है।
धूप में ले जाओ, आप धूप में ले जाओ। तो अभी हमारे साथ हैं यहाँ के लोकल्स, तो हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब, आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे अपना नाम? मैं श्रीमचंद, एक्स सरपंच बचे, तो मैं सुचाम का रहने वाला हूँ इसी गाँव का जी। हाँ। तो ये लास्ट विलेज है यहाँ? लास्ट विलेज है, लास्ट। इसके पीछे मतलब क्या आता है? इसके पीछे जस्कार, लद्दाख। जस्कार से जाके फिर करगिल, करगिल से होती फिर लद्दाख आता है। कितने दिन का सफ़र होगा यहाँ से? जस्कार 2 दिन का। 2 दिन का सफ़र पैदल ग्लेशियर क्रॉस करना होता है यहाँ से। ये सुमजान जो है ये कितना दूर होगा आपके अंदाजे से लगभग गुलाबगढ़ से? गुलाबगढ़ से 40-45 किलोमीटर। 40-45। तो अभी तक तो रोड की फैसिलिटी यहाँ तक नहीं पहुँची? कुछ नहीं। मचेल से यहाँ तक आपको पैदल आना? पैदल। तो मचेल से यहाँ तक कितना? 8-9 किलोमीटर मचेल से यहाँ तक होगा। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन यहाँ 10-12 घर यहाँ पे प्रेजेंट यहाँ पे मौजूद है। ऐसे तो हमारे लोग बहुत हैं, कुछ लोग गुलाबगढ़ बसे हैं, कुछ किश्तवाड़, तो कुछ जम्मू बसे हैं हमारे लोग, जो यहाँ के लोग लोकल जो है। तो पॉपुलेशन तो अभी तो यहाँ पे 50-60 लोग कुल रहते हैं, तो ऐसे 100-150 लोग हैं। मतलब वो एजुकेशन के चक्कर में या कुछ मेडिकल फैसिलिटी वही बाहर जाते हैं। यहाँ पे कोई स्कूल वगैरह, कोई प्राइमरी स्कूल था अभी गिर गया, वो वहाँ पे सामने है, सामने देख सकता है। मौसम की वजह से? हाँ, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती थी। बर्फ़ कितनी पड़ती है यहाँ पे? सर्दियों में बर्फ़ अगर पड़ने को लग जाता है तो एक रात में 1 मीटर से पड़ सकता है। हाँ, पहले, आज तो उतना नहीं पड़ता इस ज़माने में, पहले तो बहुत पड़ता था जी। यहाँ पे आपके हिसाब से कोई टूरिज़्म का स्कोप जो आपकी नज़र में आपको लगता है? टूरिज़्म क्या है यहाँ पे? टूरिस्ट कोई आते नहीं, अगर आएगा तो अच्छी जगह यहाँ पे। यहाँ से जगह आगे जाके आपको अच्छा जगह मिलेगा। हमारा जो क्वाली है वहाँ पे मैदान है बिल्कुल, 1-2 किलोमीटर की जगह। ट्रैकिंग की अच्छी जगह है। हाँ, बहुत अच्छा है। बस ये कि थोड़ा रोड फैसिलिटी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे रोड और लाइट दोनों नहीं है, लाइट भी नहीं है ना। ये जो इलेक्ट्रिसिटी अभी पहुँची कहाँ पे? अभी कुछ नहीं, खाली सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम अभी उसको भी टाइम लगेगा। जैसे टंगेर तक तो हम गए थे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँची, मतलब यहाँ पे भी टाइम लगता है, मगर पहुँचेंगे भी। ये थे हमारे साथ सुमचाम विलेज से। तो अभी हम आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाएंगे। दो अंग्रेज आए थे। अंग्रेज? कौन से देश से आए थे? वो वहाँ से आए थे। अच्छा। अच्छा, गिर गया वो, गिर रहेगा। गिर गया वो? हाँ। कहाँ पे गिरा? अच्छा। हाँ हाँ हाँ। वो चले गए। अच्छा। रह गया 5 दिन अकेला? फिर फौजी?
तो अभी यहाँ से आप देख सकते हैं इसे पहाड़ के ऊपर से आपको चलते हुए जाना है। ऐसा कोई मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ता भी नहीं, यहाँ से आगे पहले आपको एक पहाड़ चढ़ना है, वो चढ़ाई में आप थक सकते हो, थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब ऐसा कि स्लिपरी भी है, अगर बारिश वारिश होगी तो ध्यान से होके आना है अपनी जिम्मेदारी के साथ। तो अभी यहाँ पे हमने एक लोकल भैया मिले हमें, जिनसे हमने रास्ता वगैरह पूछा। वैसे अगर आप अकेले भी आ रहे हो तो आपको ऐसा मतलब फुटप्रिंट्स की तरफ से आपको रास्ता मिल जाएगा, आप ऐसा कहीं घूम नहीं जाओगे। तो अभी ऊपर कुछ स्पॉट्स हैं, एक दो जगहें हैं जहाँ पे हम रुकेंगे और आपको बताएंगे, वहाँ पे भी हम शूट करेंगे। साथ में अभी आपको हम दिखाएंगे कि हम कैसे कहाँ से होते हुए आए हैं। तो हम जा रहे हैं बरनास की ओर, जहाँ हम आपको एक बड़ी सी झील दिखाएंगे। बरनास अभी हमको चलते हुए लगभग 3-3.5 घंटे हो गए। तो अगर आप चलने वाले हैं तो आप इसको 4 घंटे में भी कवर कर सकते हैं, लेकिन आप एवरेज मान लीजिए 4 से लेकर 5 घंटे करीब जाएंगे आप यहाँ तक। मुझे से जो खड़ी चढ़ाई है उसके बाद थोड़े मैदान होंगे, थोड़ी सी उतराई होगी, तो आगे आप पहुँच जाएंगे। तो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे ट्विन टाउन और वहाँ पे झील थी उसके नज़ारे। As we climb higher, the air changes. Cold breezes brush against your face, whispering, "Welcome to the heights." The sky feels so close, as if you could reach out and touch it, and below, the world looks so small. And then, Machel, the moment you arrive, it feels as if time has stopped. This isn't just a destination, it's a feeling, calm, pure, and truly yours. Machel isn't just a name, it's a story. Every journey becomes a memory, but this is a saga. From every turn, every valley, every breath between Kestivar and Machel, it all stays with you. This wasn't just a road trip, it was a meeting with nature and with yourself. Until the next journey, remember, life is hidden in the roads. Thank you.